ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. बोलो भारत माता की वंदे जय श्री राम. ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಗಡೆ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂದೆ ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಎಂ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಗೋಳಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೋರಕ್ಷಾ ಪ್ರಮುಖ ಇವರಿಂದ. ಈಗ 3 ಸರಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓ यं वैदिका मंत्रदृश पुराणाम् इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तारान्निति बौद्धजैन सत्श्री अकालेति च सेकसन्त शास्तेति किचित् प्रकृति कुमार स्वामेति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थनेयं ते जगदीशिता. राम जय जय राम श्रीराम 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 श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्राज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठा कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजैर्धृतकरकरवाले अबलाकेन मा एतोबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्मां तुमि हृदि तुमि मर्मां त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्तिं हृदये तुमि मा भक्तिं तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदಳ विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की भारत माता की ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಯಸಿಂಹನಗರ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಗೌಳಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೋರಕ್ಷಾ ಪ್ರಮುಖ ಇವರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೋಳ್ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಯಸಿಂಹನಗರ ಇವರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ. ಅಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳ ನಿಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆನೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವ ಸರಣಿರುವ ವೇದಿತ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಿಮು ದೇವಣಿ ಇವರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ. ದೇಶವಾಣಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಟದ ಸುದೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವೀರ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರೇ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕರು ಬಜರಂಗ ದಳ ಜಯಸಿಂಹನಗರ ಇವರಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ. ಮುಕ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನನೆ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಲಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ. ನುಡಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ರ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ
ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾನನೀಯ ಶ್ರೀ ದೇವ್ಜಿ ರಾವತ್ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂತ ಸಮರಸದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಂಬ್ಳೆಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರು ಸತೀಶ್ ನವಬಾದಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜಯಸಿಂಹನಗರದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾಂತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂತರೇ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಮನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಇವತ್ತು ಜಯಸಿಂಹನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಭದ್ರತೆಯರಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಯಸಿಂಹನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ 1964 ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ 2024 ಹೊತ್ತಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ, ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾದರ್ಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲವ್ ಜಿಹಾದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿರುವಂತಹ ಗೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಯಸಿಂಹನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುನ್ನುಚೂಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಖಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಜಯಸಿಂಹನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜಯಸಿಂಹನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ, ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ, ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ. ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಕುಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ. ಅರ್ಧ ತಾಸು ಹಂಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಂಗೆ. जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस नगर के और जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सतीश जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के सहमंत्री आदरणीय श्रीमान शिव कुमार जी, प्रांत के समरसता प्रमुख
श्रीमान सुभाष जी कामले, इस तहसील के तहसील मंत्री विश्व हिंदू परिषद के मातेश जी पुजारी, आज की यह रामनवमी निमित्त भगवान राम की सभा में उपस्थित सभी राम भक्त भाइयों और बहनों, विविध क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे शुभचिंतक, पत्रकार बंधुओं, हमारे पुलिस के बंधुओं, आज सुबह से मैं यात्रा के साथ में हूं। मैंने जो भगवान के प्रति आप लोगों की जो श्रद्धा देखी, आप लोग जो भगवा ध्वज लेकर भगवान के नारे पुकारते पुकारते पूरे नगर में जो भ्रमण किया, बहुत ही आनंद की लागनी हुई मुझे कि भगवान हम सब के हृदय में है। भगवान राम ऐसे महापुरुष हैं, हमारे 125 हिंदुस्तान वासियों के आराध्य देव हैं। ऐसे भगवान राम की आज की शोभा यात्रा, मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्र से आया हूं, दिल्ली से आया हूं। अभी अभी जो मुझे रिपोर्ट मिला, पूरे देश में 50,000 स्थानों पर इस प्रकार की बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं 30 मार्च से आज तक संपन्न हुआ है और लाखों करोड़ों हिंदू राम भक्तों ने उसमें सहभागिता किया है। लेकिन दुख की बात है, कहीं कहीं बंगाल में 2 स्थानों पर, गुजरात में 1 स्थान पर, जैसे भगवान राम के समय में आसुरी शक्तियां विघ्न डालती थी भगवान के कार्य में, इसी प्रकार का बंगाल में 2 स्थानों पर भगवान राम की यह शोभा यात्रा पर हमला हुआ। गुजरात में 1 स्थान पर हुआ। मित्रों, आज की यह शोभा यात्रा भगवान राम के प्रति हमने जो निष्ठा और श्रद्धा बताई है, आने वाले समय में भगवान के जीवन में से हमें कुछ प्रेरणा लेकर, भगवान के समय में जिस प्रकार से धर्म को हानि पहुंचाने वाले तत्व थे, आसुरी शक्तियां थी, और भगवान राम ने स्वयं यह आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को, कोई एक वर्ग को, एक जाति को नहीं मित्रों, यदि हमें भगवान के जीवन में से जो सीखना है, यदि हमें हमारा ध्येय प्राप्त करना है, हमारे देश में आसुरी शक्ति रूपी ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा वाले वामपंथी लोग, विधर्म के लोग जो धर्म में अनेक प्रकार के हडल्स खड़ा करते हैं, ऐसी आसुरी शक्तियों को यदि महात करना है, कंट्रोल करना है, तो भगवान ने जैसे समाज के सभी वर्गों को लेकर उस समय के सर्वशक्तिमान ऐसे लंकापति रावण को, वो आसुरी शक्ति था, भगवान ने वनों में रहने वाले वनवासी, गिरिवासी, प्रत्येक जाति के लोगों को इकट्ठा किया, संगठित किया और संगठन के बल पर अपनी ध्येय की प्राप्ति की और आसुरी शक्ति ऐसे रावण को नाश किया। यही उद्देश्य लेकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुआ है। आप सब जानते हैं, अभी हमारे प्रांत के सह मंत्री ने बताया, जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद का 1964 में स्थापना हुआ। विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य, लोगो क्या है, भगवान का जो हमारा जो लोगो है विश्व हिंदू परिषद का, उसके नीचे लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैंने आज इस नगर के बंधुओं को भगवान के प्रति, धर्म के प्रति जो श्रद्धा देखी, आने वाले समय में धर्मो रक्षति रक्षति जरूर कर्नाटक में होने वाली है। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा।
यही विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद वर्तमान में आतंकवाद रूपी ऐसी अनेक घटनाओं को यदि कंट्रोल करना है, भगवान राम के प्रति जो लोग अनेक प्रकार की अड़चनें खड़ी करते हैं, समाज में भेद खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को यदि निष्फल बनाना है तो हमें भगवान के जीवन में से एक संगठन का महत्व समझना पड़ेगा। भगवान ने आसुरी शक्ति को परास्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को इकट्ठा किया, संगठित किया। आने वाले समय में कर्नाटक के बीदर शहर के सभी लोग, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समग्र हिंदू समाज का संगठन करेंगे। समग्र हिंदू समाज का संगठन यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वनवासी, आदिवासी, रविदासी, धनगर, ब्राह्मण, वैश्य, सभी हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। इस प्रकार का प्रयास आने वाले समय में संगठन को संगठित करने के लिए, आने वाले समय में आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए हम सबको करना है। ये भगवान के जीवन में से हमें सीखना है। आप देखिए, मैं आज सुबह हैदराबाद एयरपोर्ट से आया। हैदराबाद में निजाम का राज था। कहते हैं हम लोगों को जब भारत को आजादी मिली तो 1 साल बाद में मिली हम लोगों को आजादी। क्यों? कि यहाँ का निजाम हमारे देश के साथ मिलना नहीं चाहता था। यह आसुरी शक्ति को परास्त किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के महापुरुष, जिन्होंने भारत की सेना के द्वारा यह जो निजाम अलग करने की बात कर रहा था उसको कंट्रोल किया। इसी प्रकार का काम कई वर्षों पहले 1935 से 40 में मैं इस यात्रा के साथ था। मैंने एक प्रतिमा देखी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की। देखिए वो महापुरुष, देखिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी निजाम को परास्त किया था। कैसे किया? आप सब जानते हैं, हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। हम समाज को एक करना, समाज को संगठित करने का प्रयास करने वाले लोग हैं। समाज में जो भेद है वो भेद को दूर कर कर समाज को समरस, समता युक्त बनाने का काम हम सब लोगों ने हमारे सिर पर लिया है। बाबा साहब आम्बेडकर जी समाज की यह बुराई, छुआछूत को दूर करने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह के समय में महाराष्ट्र के येवला शहर में 1935 में बाबा साहब ने कहा मैं धर्म को छोड़ूंगा। जैसा ऐसी घोषणा की मित्रों, हैदराबाद का निजाम बाबा साहब के पास आया। हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब किया। बाबा साहब को कहा बाबा साहब आप मुसलमान बन जाइए। बाबा साहब ने मुसलमान नहीं बने। उन्होंने कहा मैं विदेश से आया हुआ कोई धर्म मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूं। क्यों? यदि मैंने विदेशी धर्म को, उन्होंने ईसाई भी आए उनके पास, ईसाई धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा अपनी पुस्तक में, क्या कहा? मैं यदि एक विदेश से आए धर्म को स्वीकार करूंगा तो मेरे अनुयायी अराष्ट्रीय हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे। ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। यह महान उस व्यक्ति ने निजाम की ऑफर को ठुकरा दिया। मित्रों देखिए कितना बड़ा त्याग किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। उन्होंने औरंगाबाद में सिद्धार्थ कॉलेज बनाना था। सिद्धार्थ कॉलेज की जमीन निजाम के पास थी। निजाम ने ऑफर किया बाबा साहब आप मुसलमान बन जाइए, हमारा केस लड़िए। बाबा साहब ने मना कर दिया, मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। वो जमीन को पैसा देकर खरीदा। ऐसे महापुरुष की प्रतिमा यहाँ पर मैंने देखी। ये 14 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, पूरे हिंदू समाज को एक करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो एक जाति के महापुरुष नहीं है, समग्र हिंदू समाज के, पूरे राष्ट्र के महापुरुष है। उनकी जयंती हमें मनाना है। तब जाके हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो सच्ची सामाजिक एकता, समरसता आने वाली है मित्रों। तो ये जो महान, जो हमारे महापुरुष हमारे देश में हो गए, जिनका जो चरित्र था, देखिए भगवान राम का चरित्र देखिए।
आज सब लोग बोलते हैं मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, मेरे परिवार के लोग मेरे बात नहीं मानते। भगवान राम ने अयोध्या का राजा बनने वाले थे। दशरथ राजा महाराजा ने घोषणा कर दिया था कि भाई कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा अयोध्या का। लेकिन रात्रि की घटना आपको मालूम है, दूसरे दिन उनको अयोध्या का राजा नहीं बनाया जाता, लेकिन उनको वनवास दिया जाता है। भगवान राम पूरी अयोध्या चाहती थी, भगवान राम अयोध्या का नरेश राजा बनने चाहिए। भगवान राम चाहते तो राजा बनते, लेकिन एक पिता का पुत्र कैसा होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र। भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया, राज्यासन स्वीकार नहीं किया। ये भगवान राम थे। देखिए अपने जीवन में एक पत्नीत्व किया उन्होंने, एक पत्नी। वो तो क्षत्रिय राजा थे, कई शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माता सीता के सिवाय किसी स्त्री पर अपना वो नहीं डाला। तो ये महान व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे आराध्य देव है। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने जो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा रामायण, और उसमें जो चरित्र आदर्श हमारे सामने राम का रेखा कि कलयुग में कैसा भाई होना चाहिए, कैसा बेटा होना चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए, इस प्रकार का आदर्श से प्रेरणा लेने का काम, करने का काम महर्षि वाल्मीकि जी ने महान ग्रंथ लिखकर हमारे सामने रखा है। हमारे बाबू जगजीवन राम जी का नाम सुना होगा, भारत के नायब वड़ा प्रधान थे। दो बार पाकिस्तान के युद्ध में जीत दिया, तब वो संरक्षण सेना में संरक्षण प्रधान थे। ऐसे बाबू जगजीवन राम जी थे। महात्मा फूले जी, सबकी जयंती आने वाले समय में, यह अप्रैल माह में आने वाली है। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के नाते हिंदू समाज में सामाजिक एकता, समरसता निर्माण हो, इसके नाते हम सब लोगों को मिलकर आने वाले समय में यह समस्या को दूर करने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। भगवान राम के जीवन में भी आप देखिए, भगवान राम का जीवन और रामायण आप पढ़िए, समरसता से देखिए। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा भगवान राम जब वन में जाते हैं, तो वन में सबसे पहले उनको सरयू पार कराने वाला केवट मिलता है। केवट तथाकथित छोटी जाति का है। भगवान को और सीता माता और लक्ष्मण को नाव में बिठाकर सरयू पार, राम का दर्शन तारण होने वाला है। आपके नजर के सामने आप और मैं भाग्यशाली हैं। आप और मैं इस आंदोलन से जुड़े थे, हम लोग भाग्यशाली हैं। 35-40 साल तक हमने आंदोलन चलाया, आंदोलन की सफलता मिली, और सफलता हम हमारी नजरों के सामने भगवान राम अयोध्या में 14 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। इसके दर्शन के लिए जाएंगे। बस इसी आशा के साथ हम सब लोग भगवान राम का राज्यासन इस देश में, पूरे विश्व में हो जाए, इस प्रकार के प्रयत्न में हम सब लग जाएं। यही बात कर मेरी बात को विराम करता हूं। अस्तु। भारत माता की जय। ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कुश का कल्याण, धर्मांतरण बंद हो। हर हर। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.